Hello, good morning students. We solve from exercise 2.5 question number 1 and 2. Okay, they are related to product or expansion. And as at that time I told you that we first of all solve all sums of expansion only, not of factorize. Factorize is quite opposite process of expansion. Okay, so now look at next question. Next one means question number 3. Question number 3 of 2.5. Factorize the following using appropriate identity. So right now we not going to solve question number 3. And we skip 2 questions from earlier exercise also. Just remember it. Now look at question number 4. Expand each of the following using suitable identities. Here expand what is that? So suitable identity means you know everywhere square is there. Square is there. And inside of bracket there are 3 terms. Means it is square of trinomial. So square of trinomial's formula you know x plus y plus z square is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. That is the formula. You already know. And you have to remember all this formula. Okay? So that whenever it is used at that time your formula should not be wrong. Okay? It must be perfect. Okay, so today in this question we only using that formula because everywhere it is square of trinomial. Square of trinomial. Trinomial means you know 3 terms and square. Okay, so trinomial is square everywhere given. So we are going to use this one. Now, in first question, first exercise number 2.5. Okay. So first of all, write that question. What is given? X plus 2y plus 4z whole square. In earlier lecture, I told you that if it is the case of expansion at that time, always you have to write down right side only in the very first step. But don't write x, y, z. Instead of x, y, z, write its real value, what is given inside of that. So just compare here, in place of x only, in place of y, 2y, and in place of z, they actually given 4z. It may be ABC, PQ, or whatever may be number also. But not write this formula blindly. But blank bracket should be there in place of x, y, z. So now, how I am writing, just look here carefully. I am writing this. Okay, always in the case of expansion, you have to write right side of the identity. So x square. I am not writing x square. Y square. Z square. Plus 2xy. Plus 2yz. Plus 2zx. You understand how I have written? Blank bracket everywhere. Okay. Now place its real value of x, y, z. Okay. So now x, y, z, x, y, z. Really x is x, y is 2y, and z is 4z. Okay. Now inside of that one, first, second, third first. First, second, third first means x, y, z, z, x. So first of all x and 2y. X to y. Because x is x, y is 2y. Then y is so 2y, 4z. Then 4z x. Okay. So I think all student can write this one. To understand here, just memorize that formula, make blank brackets, and write inside of bracket what is given. Understand? So just I written everything what is given in place of x, in place of y, and in place of z, everything. Just like saying that. So formula should be in front of you.
formula should be in front of you so that you can make bracket also and give also. Now nothing to do, only open bracket and simplify, that is your answer. Okay, so expansion is very easy in this sense, nothing to do. Okay, so x square is x square, 2y square is 4y square, square of both, not only 2, not of only y, of 2 and y both, 16z square. Okay, here 2 2s are 4xy, 2 into x into 2y, so 2 2s are 4xy, 2 2s are 4, 4s are 16yz, 2 2s are 4, 4s are 16, 2 4s are 8zx. Okay, z should be different than 2. Okay, so that no mix up between 2 and z should be there. So if you want, you can write everything z this way also, so that it cannot be mixed up with 2. Otherwise, many students 2 and z are equal. Okay, over. Within 2 steps, that is over. Okay, only if you know formula, making black bracket, and inside of bracket, just write down really what is given, and then opening of bracket, over. Okay, so understand? Very simple. Now look at next one, number 2. Whatever given then, 2x minus y plus z square. Okay. Now here is minus, and in formula no minus is there. Formula is of plus one. In binomial square we have two separate formula, x plus y square and x minus y square also. But here is only one formula. So what to do? This is not applicable because they are different. So here, whenever minus sign is there, means out of three, any one or two are minus at that time, you have to allot that sign to that term only. So write that way here. This is the extra step here. So here is plus in plus in. So that sign is allotted to that particular term only. And in between we have written everywhere plus. So you understand? So x is 2x, y is minus 1, and z is z. Okay, so that is extra step. Again, I just revise it. What to do? In place, in between any two terms, plus sign must be there. Then only we can apply this formula. So plus sign must be there. So what to do of minus sign? इसका क्या करेंगे? कोई बात नहीं, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, ब्रैकेट के अंदर भेज दो, तो वो y की जगह क्या बन गया? माइनस y. अगर यहाँ भी माइनस होता तो मैं यहाँ भी माइनस होता तो मैं क्या करता? प्लस करके ब्रैकेट में माइनस करता. मतलब साइन को ब्रैकेट के अंदर भेज दो, धक्का लगा. ओके, अंडरस्टैंड? बस अभी कुछ नहीं आना है, जस्ट लाइक दैट वन. ब्लैक ब्रैकेट में एक स्टेप ये एक्स्ट्रा हुआ. बस अभी मैं फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता हूँ. देखो, वो ब्रैकेट बनाने के लिए देखो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy plus 2yz plus 2zx, just like that. Okay, now just fill everything. In place of x actually 2x, in place of y actually y minus y, and in place of z. Now x y, so 2x minus y, y z minus y z, z x, but in place of x actually 2x. Okay, no x y z, actually x y z. They may be different. Whatever given, just look at the question. Okay, now just open 4x square plus y square. Square is always positive. Square is always positive. No negative sign here because minus y into minus y, minus minus plus. Okay, so square cannot be negative. Never. Understand it. Okay, and z square. Now look here, plus minus. So I initially make minus sign because plus minus. So plus minus minus. Okay, opening bracket is a multiplication. 2 2s are 4xy. Again plus minus minus. 2yz. And at last 2 2s are 4zx over. That is our answer. Okay, so here what is new?
साइन मस्ट बी पॉजिटिव. सो व्हाट टू डू, साइन को अंदर भेज दो, ब्रैकेट बना दो, तो प्लस बन गया. बस अभी जैसे ऊपर किया जब ब्रैकेट बना दो, सबको अंदर बिठा दो. x की जगह जो है इसको x की प्लेस पर बिठा दो, y की जगह जो पर्सन है, जो लोग है, इसको y की सीट नंबर पर, इसके रोल नंबर पर बिठा दो. z की रिप्रेजेंटेटिव जो भी है इसको इसकी जगह बैठा दो. आप नहीं हो, आपको प्राइज मिल रहा है, आप नहीं आ सकते, तो आपका मम्मी पापा जाते हैं, तो आपके सीट पर कौन बैठेंगे? आपके पेरेंट्स बैठेंगे, आप खुद नहीं होंगे. तो x की जगह कौन आया? 2x. तो जहां पर भी x की सीट थी ना, देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, x की जगह x के पेरेंट्स बैठे. y भी खुद नहीं आ सका, y की जगह माइनस y को बिठा दिया. देखो z खुद आया, z खुद आया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी आने में, तो z की जगह बैठ गया. इसको जहां जहां बैठना था इसकी खुद की प्लेस पर खुद बैठ गया. बस बात खत्म, सारे ब्रैकेट ओपन करो. आई बात समझ में? तो बस ऐसे ऐसे एक से ज्यादा भी माइनस हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम. एक से ज्यादा माइनस है तो कोई बात नहीं है, कभी भी मान लो दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस भी बन सकता है, लेकिन पहली तीन टर्म कभी नेगेटिव नहीं होगी. फर्स्ट थ्री टर्म्स नेवर बी नेगेटिव, व्हाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. अंडरस्टैंड? तो ऐसे आपको सेकंड मैंने किया ना, तो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ होमवर्क में आप बोले सर यहाँ तो दो दो माइनस है, क्या प्रॉब्लम है आपको? दो माइनस है तो भी नो प्रॉब्लम, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको. बाकी साइन तो आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन की माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ ब्रैकेट ओपन करने में बाकी कुछ नहीं. यानी एक की जगह दो ब्रैकेट कर सकते हैं. ओके, अंडरस्टैंड? तो मेरे पोर्शन में, मेरे भाग में अभी रहा लास्ट वन, मैं वो कर देता हूँ. सब कुछ मैं क्यों करूँ भाई? हाँ, आप थोड़ा करो, थोड़ा सा मैं सॉल्व करो. ओके, कोऑपरेशन. तो चलो मैं अभी लास्ट वन कर देता हूँ और मेरी बात खत्म कर देता हूँ, मतलब वीडियो की बात, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो दिस 3 नंबर आई रिमेंबर, जस्ट राइट डाउन राइट नाउ ओनली. Okay, so now it is a turn of last one. 6, 3, 4, 5 homework. Question number 4, exercise 2.5. Okay, what is given? A by 4. I written systematically 1 by 4 and on A by 4. Okay, both are same one. B by 2 into 1. Okay, that is the question. I just written more systematically. Okay, not change anything. Now plus sign must be here, so make square bracket first of all. First sign is equal plus 1 already. Second sign is not plus, so I have made it plus right now. Okay, sign को अंदर जाने दो ब्रैकेट में. और थर्ड को ऑलरेडी प्लस है, तो नो प्रॉब्लम. जैसे हमने थर्ड सम में किया था, थर्ड नहीं सेकंड सम में किया था, बिल्कुल ऐसे. तो यहाँ माइनस साइन को अंदर भेज दिया. तो समझ गए आप, x की जगह कौन आए है प्राइस लेने के लिए? a by 4 आए है. y की जगह कौन आए है? माइनस b by 2 आए. z की जगह कौन आए? 1 आए. तीनों में से एक भी नहीं आए, किसी को भेज दिए. कोई बात नहीं, इसके रोल नंबर पर इसको भेज दो. इसके जो रिप्रेजेंटेटिव है इसको बिठा देते हैं हम. तो पहले तो मैं सीटिंग की अरेंजमेंट कर देती हूँ, सारे चेक रख देता हूँ यहाँ पर. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. ओके, बिठा दो. कौन किसकी जगह है? x की जगह है a by 4, इसकी जगह है माइनस b by 2. ये माइनस का मतलब न्यूमरेटर माइनस है. कोई भी फ्रैक्शन माइनस है ना, इसका मतलब आप ऐसा कर दोगे न्यूमरेटर माइनस. कभी कभी ऐसे इन बिटवीन भी होता है एग्जैक्टली, आप किसको माइनस समझ लो, ऑलवेज न्यूमरेटर. अगर ऐसा होता और इसकी जगह आप ऐसे कर दो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. ये तीनों सेम ही बात है, ये तीनों बात सेम. ओके, कोई एक माइनस है इसका मतलब सेम बात है. हाँ, यहाँ पर अभी x y a by 4 माइनस b by 2
वाई जेड माइनस बी बाई टू 1 जेड एक्स 1 ए बाई टू। थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना, फ्रैक्शन है तो 2 लाइन का एक्सटेंड करना है, लेकिन थोड़ा ठीक से कंजेस्टेड मत लिखो, ओके। और थोड़े लेटर के साइज में स्मॉल कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। ओनली आप ब्रैकेट ओपन कर दो, तो सिंपल कर दो a स्क्वायर अपॉन 16, समझ गए ना, a का भी स्क्वायर 4 का भी स्क्वायर, b स्क्वायर बाय 4। मैंने बोला था ये कभी नेगेटिव नहीं होता, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, यहाँ थोड़ा सिंपलीफाई ऊपर नीचे है तो कॉट हो सकता है, इतना कर सकते हैं, कॉट जितना है इतना कर सकते हैं, लेकिन प्लस माइनस मुझे पहले से माइनस कितना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ए बी बाई 4 into a b 4। यहाँ भी 2 टू कैंसल, प्लस माइनस अगेन माइनस, ओनली b into 1b। यहाँ थोड़ा कटिंग हो रहा है, 2 टू जा 4, तो क्या बचा वहां पर a by 2। बस बात खत्म हो गई, आगे कुछ अरेंजमेंट भी नहीं करनी है, रख देना है। यहाँ एक नई बात ये फ्रैक्शन था, तो फ्रैक्शन में आपको पता है ना, इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कटिंग जितना हो सकता है इतना हम कर सकते हैं। बाकी रखा और रखते हैं, उस टाइम की बात देख लेना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, अगर 2 बार माइनस आता तो माइनस माइनस प्लस भी बन सकता था, ओके। तो ये बात यहाँ खत्म हो गई, एक बात खत्म हो गई। और 3 सम मैंने होमवर्क में दिया, आपको पता है कौन से सम है, मैं बार बार रिपीट करूंगा नहीं। तो सारे सम एक जैसे, और माइनस वाली बात आई तब थोड़ी सी बात अंदर आ गई कि साइन को अंदर भेज दो, ब्लैक ब्रैकेट बना के इसकी जगह बिठा के ब्रैकेट ओपन कर दो, और ओके। नाउ लुक एट नेक्स्ट नंबर 5 फैक्टराइज। सो हम फैक्टराइज तो अभी करने वाले नहीं, तो 5 नंबर को स्किप कर दो। अभी नंबर 6 देखो, वहां है राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। आप बोलो सर कैसे पता है एक्सपांशन है, या तो वर्ड दो, एक्सपांशन, प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपांडेड, या तो आपको सामने दिखाई दे होल स्क्वायर है, होल क्यूब है, तब क्या करना पड़ेगा, एक्सपांशन ही तो बोलते हैं इसको, ओके। मतलब मैंने सारी फॉर्मूला कल लिखी थी ना, मतलब अगले लेक्चर में, वो सारी लेफ्ट साइड वाला जो है ना, तो एक्सपांशन ही समझ लेना, ब्रैकेट है तो एक्सपांशन ही समझ लेना, होल स्क्वायर, होल क्यूब जो भी, ओके। तो पहले तो मैं नेक्स्ट सम स्टार्ट करने से पहले बाकी फॉर्मूला भी लिख दूं, बाकी सारी फॉर्मूला भी लिख दूं, ओके। तो हमारे पास बाकी रही ये फॉर्मूला जिसका आज यूज नहीं हुआ, एक तो ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इसकी माइनस वाली सेपरेट थी, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, और एक होल क्यूब की ऐसे थे ना, x प्लस y होल क्यूब, क्या था, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। और ऐसे ही यहाँ जैसे प्लस माइनस की सेपरेट थी, यहाँ भी सेपरेट थी, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x। ओनली प्लस की साइन आपको जहां पर दिख रही है ना, देखो प्लस की साइन जहां दिख रही है वहां पर माइनस, लेकिन पहली टर्म प्लस ही है और प्लस ही रही, वहां प्लस की साइन दिख नहीं रही, एक्चुअली है प्लस लेकिन प्लस ही, समझ गए। तो आपको याद रखनी है, तो तीनों प्लस की साइन को माइनस में कन्वर्ट कर दो, और यहाँ ओनली मिडिल टर्म का साइन ही चेंज होगा, प्लस फर्स्ट एंड लास्ट ऐसे ही रहेगा, ओके, क्योंकि वो स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बाकी मैं नहीं लिखता हूँ, अभी वो ट्राइनोमियल का स्क्वायर वाली मैंने लिखी थी, इसका यूज हो गया। अभी इसमें से हम आगे बढ़े, तो 6 का फर्स्ट देख लेते हैं हम, देखते क्या है, 2x प्लस 1 होल क्यूब। तो आपको अंदाजा आ गया, ये फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि होल क्यूब है और इन बिटवीन क्या है, प्लस। तो यहाँ पे आपको यही काम करना है, एक्सपेंशन में कुछ नहीं करना है, इसकी राइट साइड लिखो, लेकिन एक्स वाई नहीं, एक्स वाई खुद आने वाले हैं नहीं, वो वीआईपी है, तो किसी को भेज देते। तो हम में भी एक्स वाई की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, एक्स इसकी जगह इसको पहले मैं ब्लैक ब्रैकेट बना दूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। देखो ब्रैकेट कैसे बनाया थोड़ा समझ लो, ब्रैकेट कैसे बने हो थोड़ा समझ लो। ये लास्ट वाला कॉमन है, पूरा सा ब्रैकेट बीच में प्लस, क्योंकि वरना गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे नहीं लिखोगे, समझ गए।
ब्लैंक ब्रैकेट एवरी टाइम यही तो काम करते थे, कल भी यही काम किया है, कल मतलब प्रीवियस लेक्चर में, आज भी सारे जगह हमने एक्सपेंशन में यही काम किया है। अप्रोप्रिएट फॉर्मूला की राइट साइड वाली जो भी है, राइट साइड लिखा है लेकिन रियली नहीं लिखा है, इसका ब्लैंक ब्रैकेट बनाया। अभी देखो x क्यूब नहीं आया, किसको भेजा है 2x क्यूब, ये y क्यूब 1 y भी खुद नहीं आया, किसको भेज दिया 1, मतलब x y x y x y x y x y x, तो अल्टरनेट लिखा करो 2x1 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 2x2, बात खत्म। तो समझ गए आप, ब्लैंक ब्रैकेट बनाना, बना के फिल करना, वो ही मेन बात है। समझ गए, एक चेयर अरेंज करना और चेयर पर एप्रोप्रिएट पर्सन को बिठा देना, वो ही मेन है। ओके, लेकिन जिसकी चेयर है इसकी जगह कोई दूसरे को मत बिठा दे, एक बात। और दूसरी बात कि चेयर जैसे अरेंज होती है ऐसे ही करनी है, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करना है, पास पास में कोई रखनी नहीं है। समझ गए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करेंगे, ऐसे चेयर आप अरेंज करेंगे, ये पहली बात। मतलब मैंने पहले चेयर अरेंज की थी, बाद में चेयर पर जिसकी नेम प्लेट है इसको, या तो इसके रिप्रेजेंटेटिव, इसका ब्रदर आया है, इसकी सिस्टर आई, इसकी मम्मी आई, इसका पापा आया, प्राइज लेने के लिए जो भी लोग आए इसको बिठा दे। तो चेयर को कैसे अरेंज करनी वो भी आपको पता हो गया, और वो चेयर पर किसको बिठाना वो भी आपको पता आ गया। तो मतलब दोनों बात आ गई, बात खत्म हो गई। ओके, बस अभी ब्रैकेट ओपन कर दो, 2x क्यूब, 2 का भी क्यूब है, x का भी क्यूब है, मतलब दोनों का क्यूब है, तो 8x क्यूब। ठीक से समझना, 2 क्यूब 8 और x का क्यूब x क्यूब, 1 क्यूब 1 प्लस 3 टू द 6x। यहाँ देखो ये काम पहले करेंगे, इसका बाद में। तो पहले तो हम ये मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा, सारा ब्रैकेट एक साथ नहीं चलेगा, ये थोड़ी बात याद रखना, क्योंकि एक साथ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये ब्रैकेट लास्ट तक रहेगा, मतलब एक स्टेप और लेगा, बाद में होगा। समझ गए? तो मैंने अभी तक ये सारा ब्रैकेट रिमूव किया, ये बाइनोमियल को बाइनोमियल ही रखा, ओनली ये 3 ये भी किया, 3x/3। अभी इसका भी टर्म ले लो, ये सारा कॉपी कर दो, इसका देखो आपको पता है ना ब्रैकेट कैसे ओपन होता है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई। सो 6x into 2x 12x and 6x into 1 6x। ओके, बस बात खत्म, ब्रैकेट ओपन हो जाए बात खत्म। कोई स्टूडेंट इसको अरेंज करते हैं, पहले 3 डिग्री वाली, बाद में 2 डिग्री वाला, बाद में ये, बाद में ये करना है तो आप करोगे, यहाँ अगले वाले समय नहीं। अगर आपको अरेंज करना है तो कंपलसरी नहीं है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, दोनों आंसर है, मार्क कोई कटेगा नहीं। आई बात समझ में? ओके, ब्लैंक ब्रैकेट मतलब चेयर का अरेंजमेंट, ब्रैकेट को फिलअप करना मतलब इसकी जगह पर्टिकुलर पर्सन को बिठाना, बिठा के क्या करना, कुछ नहीं, बैठने, लेकिन थोड़ा ठीक से, तो थोड़ा सिस्टमेटिक कर दो इसको। लेकिन ये बाइनोमियल है, वो ये स्टेप में एक साथ नहीं खुलेगा, इसका टर्म नेक्स्ट स्टेप में आएगा, ये थोड़ा याद रखो। बस बाद में अरेंज करना है तो, वरना ये भी आंसर है, नो प्रॉब्लम। ओके, देखते हैं अभी नेक्स्ट में 2a - 3b, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। सेकंड वन 2a - 3b होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब। तो यहां भी देखो ये होल क्यूब है, लेकिन इन बिटवीन माइनस, तो इसकी फॉर्मूला ले लो। बस पहले मैं क्या करूंगा, सारी जो चेयर है इसको मैं अरेंज करूंगा। तो पहले मैं अरेंज कर दूं, क्या ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंस। अभी कौन कहां बैठेगा आपको पता है, x y x y x y, 2a 3b 2a 3b 2a 3b, आपके सामने फॉर्मूला होनी चाहिए, वरना आपका ब्रैकेट या तो साइन गलत बनती है। ओके, आपको मैं चेयर अरेंजमेंट करना है तो मैं कुछ आपके सामने फोटोग्राफ रख दूंगा कि ऐसे ही करो, समझ में आए? आपके सामने कुछ तो होना चाहिए, इसका मैप होना चाहिए, इसका फोटोग्राफ्स होना चाहिए, अरेंजमेंट कुछ तो होनी चाहिए, तो आपके सामने होना चाहिए।
तब आप चेयर को ठीक से अरेंज करोगे। और कौन सी चेयर पर किसको बिठाना है वो भी आप तभी कर सकते हैं अगर आपके सामने पर्दे है। दोनों बात तभी पॉसिबल है। मैं कर सकता हूं क्योंकि मेरे सामने पर्दे है। मान लो नहीं होते तो मैं भी नहीं कर सकता। ओके, तो अभी 8 क्यू क्यू 8 आया तो समझ में आया ना। 2 3 जा 6 करने वाले तो कोई नहीं है ना भाई हमारे क्लास में। 2 3 जा 6 नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ओके, अभी यही काम करेंगे। 3 2 जा 6, 3 जा 18 ए, 18 ए बी। ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा जैसे आगे किया था। ओके, बस अभी इसका भी टर्म ले लो। तो ये तो कॉपी करके आगे बढ़ो। पहली दो टर्म तो ऐसे रहेगी। 18 2 जा कितना होता है 36 ए स्क्वायर बी। ठीक से देखना हो कैसे मल्टीप्लाई होता है। 18 2 जा ए इनटू ए स्क्वायर और बी ओनली बी। अभी नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, नॉट माइनस। तो पता है ना ब्रैकेट ओपन करना मतलब मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करो अगेन 18 3 जा 54, ये ओनली वन टाइम लेकिन बी ट्वाइस स्क्वायर। बस बात का तो ध्यान दे रहे थे। ठीक है, जो है ओके। तो दोनों में कुछ डिफरेंट नहीं है, ओनली इसका रिप्रेजेंटेटिव बदलता रहता है। फॉर्मूला बदल गई, क्या हमें प्रॉब्लम है? हमें फॉर्मूला याद है, सामने भी हम लिख सकते हैं, लिख देते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं, मार्जिन में या तो पास में। ओके, बस सारे वैल्यू रखो, बिठा दो। लेकिन एक याद रखना, ये ब्रैकेट बाद में खुलता है। एक साथ खोलने के लिए जाओ तो प्रॉब्लम हो सकती है। मैं भी नहीं खोलता, तो आप समझ के आपको भी नहीं करना है ऐसा। रिस्की काम हम क्यों करें? एक स्टेप में एक ही काम करेंगे, ज्यादा नहीं। हाँ, नेक्स्ट देखो नंबर 3। मैं सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप खुश हो गए। सारा क्वेश्चन करने वाला हूँ ऐसा बोला तो आप खुश हो गए, लेकिन खुश होना नहीं। ऐसा है कि डुप्लीकेट सम मिलेगा आपको, इसका एक डुप्लीकेट सम मिलेगा। ओके, क्योंकि मैं जितना काम करता हूँ इतना काम आपसे पास करवाता हूँ। पहले में मैंने 2 सम किया था, अगले सम ने कितने दिए थे? नहीं, 3 सम की, सॉरी 3 किया था, 3 दिया था। ठीक से याद रखो, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट किया था और इन बिटवीन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ दिया था मेन क्वेश्चन नंबर 4 में। मेन क्वेश्चन नंबर 6 में मैं 4 सारे के सारे सम करने वाले हूँ, तो 4 आपको मिलेगा। ठीक है, अभी 6 का 3 पर आए ना, 6 थर्ड 3x/2 थे, तो मैं ऐसे 6 से लिखता हूँ, 3/2 को अलग से नहीं लिखता। आपको भी ऐसे नहीं करना, मतलब मेरी तरह ही लिखना। 3x/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, यहां होल स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, सभी जगह क्यूब है, सारी जगह, लेकिन फ्रैक्शन आया तो कर देता हूं। लेकिन फ्रैक्शन की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, समझ रहे? तो देखो x³ प्लस y³ प्लस 3xy x प्लस y से अरेंज कर दी मैंने। अभी सभी को बिठा दो, तो xy xy xy, तो 3x/2 1, 3x/2 1, 3x/2 1। ओके, बस ब्रैकेट ओपन कर दो, 9x³ अपॉन 8 क्यूब करना तो आ गया, प्लस 1 का क्यूब 1। अब यहाँ कटिंग नहीं होता, होता तो मैं करता लेकिन नहीं होता। तो 9x/2 तो पूरा मिलके तीनों को इंटू करके क्या मिला, 3 3 जा 9, 9 into 1 9x अपॉन 2, 3x/2 प्लस 1। ये ब्रैकेट तो अभी नहीं खुलेगा, नेक्स्ट स्टेप में खुलेगा। बस पहली 2 टर्म को कॉपी कर दो, वो काम बाकी वो निपटा लो। अभी भी कटिंग तो नहीं होने वाला है क्योंकि लेवल में है। तो 9 3 जा 27 x² अपॉन 4, समझ गए? 9 3 जा 27 x² बन गया, 2 2 जा 4 बन गया। अभी इसका इसके साथ तो इंटू 1 मतलब वो ही 9x/2 इंटू 1 9x/2। ओके, वो सब तो पता है ना आपको बेसिक। एनीथिंग इंटू 1 इटसेल्फ, एनीथिंग इंटू 1 इटसेल्फ। सो अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। अब फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन देख के आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाओ कि फ्रैक्शन वाला सम तो डिफिकल्टी होता है, ऐसा मत सोचो।
Okay, simple A. Okay, now next number 4. X minus 3y, sorry, 2y by 3, 2y by 3. यहाँ देखिए, देखो मैंने 2/3 और y को सेपरेट नहीं लिखा, आप हम कंफ्यूज हो गए, इसलिए ऐसे ही कर देना है बार बार। ओके, बस पहले मैंने ब्रैकेट x क्यूब ये फॉर्मूला पहले ये किया था, यहाँ ये अभी यहाँ आ रहा है x क्यूब माइनस y क्यूब, और फ्रैक्शन है तो पहले से थोड़ा ऐसे ब्रैकेट थोड़ा बना लो ठीक से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी दो लाइन का स्ट्रेट कर लो फ्रैक्शन के लिए, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy x प्लस y, दो लाइन का स्ट्रेट, क्योंकि स्पेस चाहिए मुझे ऐसे। ओके, xy 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 x 2y by 3 x 2y by 3 x, सॉरी यहाँ माइनस होगा 2y by 3। ओके, फॉर्मूला देख लो, सारी जगह माइनस माइनस माइनस, तो इन शॉर्ट प्लस के साइन देखेंगे। ओके, यहाँ देखो x खुद आया है, x खुद आया है, y नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें कोई आए या ना आए इसके साथ मतलब नहीं है, लेकिन इसके ऑप्शन में कोई तो होना चाहिए। बस ब्रैकेट ओपन कर दो, x क्यूब माइनस 8y क्यूब अपॉन 27, ओके, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, और यहाँ ये पहले इंटू करो, इसको तो पहले ऐसे रख लो, इसका कुछ होने वाला नहीं, बाकी का करो तो 3 3 कैंसिल हो गए, अच्छी बात है। 2xy लेफ्ट ओनली 2xy, आपको नहीं सर x कहाँ है, कुछ नहीं है, मतलब न्यूमरेटर में होता है। ओके, x न्यूमरेटर में, बस अभी ये ब्रैकेट भी खत्म कर लो। सो यहाँ पहली दो टर्म में तो हम कुछ करेंगे नहीं, 27 ऐसे लिखा, आप ही देखो माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर y, 2x स्क्वायर y, x 2 टाइम्स है y, माइनस माइनस प्लस, एक खास याद रखना, ये मिस्टेक आप करने वाले हैं, अभी से बोल दो, जब भी इसकी टेस्ट होगी ये मिस्टेक आप करने वाले हैं ही, मैं पहले से आपको बोल देता हूँ। ओके, अगर मुझे गलत साबित करना है तो आप कर सकते हो। हाँ, तो यहाँ क्या होगा, 4xy स्क्वायर अपॉन 3, 2 टू जा 4xy स्क्वायर अपॉन 3 रहा, पहले इसका इसके साथ, बाद में इसका उसका, मतलब बाहर वाले का अंदर के सारे के साथ मल्टीप्लाई टर्म होता, अंदर दो टर्म है, मान लो कि 10 टर्म होती तो 10 और 10 के साथ 2xy इंटू होता हो, तो आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव को, बस बात कर दो। ओके, तो अभी इसके बेस पर और मैं 4 सम देने वाला हूँ, बिल्कुल ऐसे ही सीक्वेंस में मैं देने वाला हूँ। 2x plus 3y cube, नंबर 2, सॉरी ऐसा सम तो है अंदर, मैं थोड़ा चेंज कर दूं, x plus 3y, ओके, अभी ये भी ले लेंगे, 3 2a 5a माइनस 2, 5 का क्यों पता है ना, 5 3 जा 15, 5 into 5 into 5 125 हो जाएगा। नंबर 3, x प्लस 1/2 क्यूब, ओके, 3x प्लस 1/2, ऐसे नंबर 4 में ले लो, तो वहां a ले लेते हैं, a माइनस b by 3, ओके, यहाँ 2 ले लेते हैं, तो a माइनस b ले लेते हैं। ओके, तो ये 4 सम आपको होमवर्क में एक्स्ट्रा है, टेक्स्ट बुक पे नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक जैसे है, और आगे के 3 सम कौन कौन से थे, एक्सरसाइज 4a 3 4 5, okay, they are also homework, so total 7 sums are in homework, okay.